सो हाँ जी, स्टार्ट कर रहे हैं ਆਪਾਂ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਾर्ट करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ठीक है, एजेंट ससैप्टेबल होस्ट एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एनवायरनमेंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਵਾਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। हाँ जी, आ रही है आवाज़? थोड़ा एक मैसेज थले कर दो। ओके, सो वॉइस क्लीयर है। सो नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਜ, ਸੈਕਸ ਔਰ ਦਾ ਜੈਂਡਰ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਦਾ ਸੈਕਸ ਔਰ ਦਾ ਜੈਂਡਰ, ਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਬੋਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜ ਉਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 올ਡ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਐਪੀਡੈਮੀਓਲੋਜੀਕਲ ਟ੍ਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਸੈਪਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਏਜੰਟ। ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਏਜੰਟ। ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਫੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਏਜੰਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੈਸਿਵ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਐਬਸੈਂਸ ਕਰਕੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੈਕਚਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਏਜੰਟ ਕੋਈ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਏਜੰਟ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ, ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਕੋਕਸ, ਮਾਈਕੋਬੈਕਟੀਰੀਅਮ, ਸੋ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ, ਓਕੇ, ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਈਲ ਜੂਸ ਹੈ, ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੁਛ ਬੋਡੀ ਦੀਆਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ, ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰੇਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਏਜੰਟ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ है। सो मैं हिंदी के विच कर देना क्लास चलिए कंटिन्यू। ओके, सो इसमें क्या है, देखो जैसे कि एजेंट वो है जिसकी एब्सेंस हो, जैसे कि अनीमिया की हम एग्जांपल लेते हैं, उसमें ब्लड का लेवल है जो डिक्रीज़ हो जाता है, एचपी लेवल है जो बॉडी में वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, सो तब बॉडी में अनीमिया जो डिजीज़ है वो इफ़ेक्ट करती है बॉडी में, जो है वो अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर लेती है। ओके,
सो बॉडी में और किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है, तो इन दैट केस that type of deficiency of any type of micronutrient or macronutrient, so they will lead to any type of disease, protein energy malnutrition है. Okay, so in short agent कोई भी ऐसा फैक्टर होता है जिसकी या तो रिलेटिव एब्सेंस हो या उसकी कमी हो बॉडी में या उसकी जो एक्सेस हो जाए बॉडी में, दोनों ही कंडीशन में बॉडी को अफेक्ट करे, तो उसको हम एजेंट बोलते हैं, बॉडी में किसी टाइप की डिजीज कॉज करे. ओके, सो दैट इज एजेंट. क्लियर? सो इसकी डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, इसमें आप अगर नोट करना चाहो, फैक्टर whose presence or relative absence is essential for the occurrence of a disease such as microorganisms, chemical substances, etc. Okay, so वही बात है जो मैंने एक्सप्लेन की, किसी भी टाइप का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, दैट विल बी द बायोलॉजिकल एजेंट. किसी भी टाइप का कोई केमिकल सब्सटेंस हो सकता है, दैट विल बी अ केमिकल एजेंट. ओके, whose relative presence or relative absence may lead to any type of disease is known as a agent. So उसकी या तो कमी हो बॉडी में या उसकी एक्सेस में प्रेजेंस हो. So in both conditions that will that factor will be be regarded as a agent. Okay. Next is the environmental factor. So environmental factor क्या है? तीसरा पार्ट है जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में, दैट इज एनवायरनमेंट. सो एजेंट हमने पढ़ लिया, आगे एक्सप्लेनेशन आएगी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जब हम करेंगे. दीज आर ओनली जस्ट द टर्मिनोलॉजीज. सो एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या है? एजेंट है बॉडी का, वो स्ट्रांग होना चाहिए तब डिजीज होगी. होस्ट जो है वो ससेप्टेबल होना चाहिए और एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए. ओके, सो इसमें क्या है? एनवायरनमेंट क्या होता है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी बोलते हैं, सच एज क्लाइमेट, इंसेक्ट्स, सैनिटेशन, हेल्थ सर्विसेज विच इफेक्ट्स द एजेंट एंड द होस्ट. ओके, सो इसमें क्या है? दो टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल भी हम काउंट कर लेते हैं. इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के इंटरनल, ठीक है. सो जो इनसाइड द बॉडी हम जैसे बात कर सकते हैं, वो एनवायरनमेंट होता है जिसमें बॉडी के अपने केमिकल कंसनट्रेशन सारी आ जाती हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं, सो उनके एनवायरनमेंट की बात करते हैं. एक आता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें हम सांस लेते हैं, तो वो और अंदर का दोनों ही एनवायरनमेंट आपस में रिलेट करते हैं. और अगर वो एनवायरनमेंट भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट फेवरेबल होते हैं तो डिजीज़ जो है वो कॉज हो जाती है, अदरवाइज वो इफेक्ट नहीं करती ससेप्टेबल होस्ट को. सो दिस इज नोन एज द एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर. जैसे मान लीजिए सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है. तो सैनिटेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो बहुत सारी डिजीज, मलेरिया और एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, वो हो सकती है बॉडी में. ओके, डेंगू, चिकनगुनिया, फलेरिया, बहुत सारी हैं, वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं. ओके, सो क्लाइमेट अगर क्लियर नहीं है तो उसमें भी हो सकती हैं. So that is environmental factor. So that is also important in epidemiological trial. Next, disease. So disease क्या है? Disease में हम इसको एक सिंपल डेफिनेशन है इसकी, can be defined as the derangement in the function of the body or any parts of the body of the host. So इसमें क्या है? या तो बॉडी का एक ऑर्गन या पूरे का पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है जैसे कि उसको एक्चुअल में नॉर्मल तरीके से करना चाहिए. ओके, सो इसे ही बोलते हैं हम डिजीज. ओके, सो डीअरेंजमेंट हो जाता है बॉडी के किसी ऑर्गन के फंक्शन में या पूरे के पूरे ऑर्गन सिस्टम में. ओके, सो दैट इज नोन एज डिजीज. नेक्स्ट इज द कंटेजियस डिजीज, द डिजीज विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटैक्ट. सो सिंपल सी एक डेफिनेशन है कंटेजियस की है, जो हाथ लगाने से, या हाथ लगाने से तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कंटेक्ट से, किसी के साथ स्किन टू स्किन कंटेक्ट हो जाने से अगर कोई डिजीज़ फैलती है, मिकोजा टू मिकोजा कंटेक्ट होता है, ठीक है. सो स्किन टू स्किन है, ऐसे करके जो कंटेक्ट अगर होता है तो वो आगे किसी डिजीज़ को कॉज करता है. तो फ्रॉम मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल, एनवायरनमेंट टू मैन और एनिमल. सो देयर इज समवट डिफरेंस बिटवीन अ कम्युनिकेबल डिजीज़ और अ कंटेजियस डिजीज़. कम्युनिकेबल क्या है? वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन. सो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है? जिसमें इन्फेक्शियस एजेंट्स जो हैं वो बॉडी जो पर्सन टू पर्सन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर थ्रू आइदर द डायरेक्ट रूट ऑफ ट्रांसमिशन और इनडायरेक्ट. सो इन बोथ कंडीशन द डिजीज that is transmitting from one person to another is known as a communicable disease. Okay.
So that is the definition. Next is the infectivity. Is the measure of the ability of the disease agent to establish itself in the host. So अपने आप को जो है एजेंट जो है अपने आप को कितना डेवलप कर सकता है होस्ट की बॉडी में, तो उसको बोलते हैं इन्फेक्टिविटी. ओके. Next is the virulence. Is a laboratory term used to measure the varying ability of a disease agent to produce disease under controlled conditions. So इतना एक जो है डिजीज एजेंट किस टाइप की इन्फेक्शन जो है बॉडी में कॉज कर सकता है, कितने ऑर्गन सिस्टम्स को आगे जो है वो अफेक्ट कर सकता है. सो दैट इज टर्म, लेबोरेटरी टर्म गिवन टू द ability that is known as virulence. Next is the pathogenicity. Used to describe ability of a particular disease agent. So pathogenicity क्या है, कितने रेंज ऑफ होस्ट जो हैं एक ह्यूमन ही नहीं आगे और किनको, ठीक है, आगे एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं. कैसी डिजीज़ होती हैं कई में जिसमें एनिमल्स भी इफेक्टेड होते हैं और ह्यूमन बींग्स भी होते हैं. कई बार एनिमल्स से ह्यूमन बींग्स भी जो है इफेक्ट होते हैं सेम जो है एजेंट के थ्रू. सो उसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी, मतलब एक एजेंट कितनी रेंज ऑफ होस्ट को आगे डिजीज कॉज कर सकता है. ओके. नेक्स्ट इज द कैरियर. कैरियर क्या है? कैरियर क्या होता है? एक ऐसा इंडिविजुअल होता है ह्यूमन में की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जो डिजीज से इन्फेक्टेड तो होता है, ठीक है, बट वो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम शो नहीं करता और डिजीज को अपने थ्रू किसी और पर्सन के जो बॉडी में है वो ट्रांसमिट कर सकता है डिजीज को. ठीक है. कैरियर मीन्स टू से द पर्सन दैट्स द कैरियर is just carrying a disease agent in his or her body, and when the conditions are favorable, that person transmit that type of disease agent from himself or herself to the next person. So that person is not known as carrier. Next is the incubation period. Entry of the agent into the body of the host till the appearance of the first sign and symptom. Okay, so that is known as the incubation period. That means when the agent is mature enough that now it's the time when it may show any type of symptoms. Okay, so till the appearance of the first sign and symptom, and from the beginning of the entry of the host into the body till the appearance of the first sign and symptom, that time period is known as the incubation period. Okay. Next is the latency period. So period of the subclinical or inapparent pathological changes following exposure ending with the onset of the symptoms of chronic disease. So इसमें क्या है, जब भी कोई एक इसको ऐसा पीरियड बोलते हैं कि जिसमें सब क्लिनिकल, दैट मीन्स व्हेन वी कांट से दैट दिस द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दैट स्पेसिफिक डिजीज. मतलब उसमें अभी हम अभी क्लियरली नहीं कह सकते. ये मान लो उसमें अगर सिम्टम्स हैं, फीवर के सिम्टम्स हैं, चिल्स हैं, ठीक है, सो उसमें डिजीज़ को हम अभी तक क्लियरली डायग्नोस नहीं कर पाए. इट मे बी मलेरिया, इट मे बी डेंगू और एनी अदर टाइप ऑफ डिजीज़. ओके. सो उस कंडीशन से लेके उस कंडीशन को बोलते हैं सब क्लिनिकल. दैट मीन्स व्हेन द साइन एंड सिम्टम्स आर नॉट क्लियर कट, ओके, एंड वी कांट से दैट clearly that what type of disease is that from which that specific person is suffering. So in that condition, the stage is known as subclinical, and when the that stage develops into chronic stage of the symptoms, when the symptoms that are those starting appearing in the later stage, that later stage will be known as the latency period. जब आगे चलकर जो साइनस सिम्टम्स हैं उस डिजीज़ के, तो साइनस सिम्टम्स क्लियर कट हो जाते हैं और पर्सन को और तकलीफ होने स्टार्ट हो जाती है. उसमें जो साइनस सिम्टम्स हैं और प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं. सो इन दैट पीरियड, ठीक है, वी कैन से दैट नाउ द लेटेंसी पीरियड हैज स्टार्टेड, और बिकॉज द क्रॉनिक डिजीज इन इट्स chronic stage, or in that chronic stage is latency period. Okay. Next is the pre-patent period. It's the period between the infection of the host by the agent and the detection of agent in the tissues or secretions. So इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है प्री-पेटेंट. क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि जो भी डिजीज़ हो रही है कोई पर्सन
किसी डिजीज से सफ़र कर रहा है तो हम उसका डायग्नोस करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, स्पूटम टेस्ट करवाते हैं, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट। लेकिन अभी वो जो एजेंट है, ठीक है, सो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के सिक्रीशन पे अपीयर होना स्टार्ट नहीं हुआ। दैट मीन्स अभी वो बॉडी में इतना डेवलप नहीं हुआ, लेकिन कुछ एक सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन जब वो एजेंट जो है किसी भी सिक्रीशन में, मान लो हम स्पूटम कल्चर करते हैं ट्यूबरक्लोसिस में, तो अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स अब उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है। दैट मीन्स अब प्री पेटेंट पीरियड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ओके, सो अब जो है सिक्रीशन, बॉडी की सिक्रीशंस जो हैं उसमें वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें शो होना स्टार्ट हो गया है। सो उसके बोलते हैं प्री पेटेंट पीरियड। ओके, नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज द इन्फेक्शन। व्हाट इज इन्फेक्शन? इन्फेक्शन क्या होता है? इन्वेजन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द होस्ट। बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म और द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब एंटर करता है, आगे अपने आप को डेवलप करता है, साइन एंड सिम्टम शो करता है, ठीक है, सो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। एंड में जाके अलग अलग टाइप से साइन एंड सिम्टम शो करेगा, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स को अफेक्ट करेगा। सो दैट इज इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज द अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इन सभी टर्म्स में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट में से एक ये है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और ये जो डेफिनेशन है और ये जो टर्म है, ये एड्स के पर्सन में, HIV पॉजिटिव जो पर्सन होते हैं उनमें देखने को मिलती है। क्यों? मैं पहले बता देता हूँ होता क्या है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या है? जब किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल HIV हो जाता है, एड्स हो जाती है, HIV पॉजिटिव पर्सन होता है, तो उसका क्या है, इम्यून सिस्टम जो है वो डिफेक्टेड हो जाता है। ओके, तो इम्यून सिस्टम डिफेक्टेड होने से उसमें क्या है, उसको अब अलग अलग इन्फेक्शन जो पहले इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन्फेक्शन अपीयर नहीं हो रही थी, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को डेवलप करता है और आगे चल के अलग अलग टाइप से इन्फेक्शन को बॉडी को इन्फेक्शन रिजल्ट करता है। ओके, सो इस डेफिनेशन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं opportunistic infection. That means now the microorganism, after the immune system of the specific person is defected, or immune system, when the immune system is not so strong, then the various types of infection which were curable, or which were tackled by the strong immune system, are now able to develop themselves in the body of the host, and that results in the various types of opportunistic infections. So the perfect example for the opportunistic infection is HIV positive patient or the AIDS affected person. Okay, so that was opportunistic infection. Next is the reservoir. So reservoir जब भी है तो मैं समझाने के लिए एक बहुत ही क्लियर कट एग्जाम्पल जो है वो बच्चों के आगे रखता हूँ। एक होता है रेजर्वायर, एक होता है सोर्स। रेजर्वायर क्या होता है? एक परमानेंट हैबिटेट होता है, परमानेंट रेसिडेंट होता है, रेसिडेंस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, जिसमें क्या है, रेजर्वायर क्या होता है, वो हैबिटेट जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह के अपने आप को ग्रो करता है, वहाँ से फूड लेता है, अपने आप को डेवलप करता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, एंड बॉडी में जाके फिर अपने आप को जो डेवलप करके आगे इन्फेक्शन है जो कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। सो उसको तो बोलते हैं रेजर्वायर। दैट मीन्स रेजर्वायर इज ऑलवेज अ परमानेंट रेसिडेंस फॉर एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल द रेबीज वायरस इन डॉग्स, ठीक है, सो वो डॉग के अंदर रहता है। मलेरिया के लिए जो उसका पैरासाइट है वो हमेशा मॉस्किटो में ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि मच्छर के काटने से रेबीज होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो रेजर्वायर के तौर पे एक्ट करते हैं, वो परमानेंट रेसिडेंस है। ओके, हमेशा मच्छर के काटने से मलेरिया ही होगा। ओके, सो दूसरा एक होता है सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपके हाथ हो सकते हैं। सोर्स क्या होता है मैं पहले बताता हूँ। कोई भी ऐसा हैबिटेट परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता, टेम्परेरी होता है, जिसमें थोड़ी देर के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रुकता है, लेकिन उसको वहाँ पे अगर कंडीशंस फेवरेबल ना मिले तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे किल हो जाता है, आगे डिजीज कॉज नहीं कर पाता। लेकिन आगे उस सोर्स के ऊपर उसको टेम्परेचर और एनवायरनमेंट जो है फेवरेबल मिल जाए तो आगे वो जाके पर्सन को डिजीज कॉज कर सकता है। आपका मोबाइल फ़ोन, हम सबका मोबाइल फ़ोन है जो, उसमें सारा दिन हम अलग अलग तरीके से
जो हाथ है वो लगाते रहते हैं, किसी चीज़ को टच करके लगा लिया। आजकल तो कोरोना वायरस के टाइम में ज़्यादा हो गया है सोर्स और रेजरवायर का जो हैबिटेट हैं वो हम ज़्यादा थोड़े से केयरफुल हो गए हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है, सोर्स क्या होता है, हमारा मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कार का स्टीयरिंग हो सकता है, कीबोर्ड हो सकता है, लैपटॉप का, कंप्यूटर का। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अलग अलग तरीके से हम हाथ हाइजीन अगर मेंटेन है तो ठीक है, नहीं है तो सभी उसको टच करते हैं। कॉमन साइट्स जो होती हैं, गेट के हैंडल हो गए, सो ये चीज़ें हैं। हॉस्पिटल में जो अलग अलग बेड रेलिंग्स हैं, ये चीज़ें एक्ट कर सकती हैं सोर्स के तौर पर। ओके, सो दीज आर द टेम्परेरी रेसिडेंस। ठीक है, सो मैं हमेशा एग्जांपल क्या देता हूँ, रेजरवायर जो होता है, जो अगर स्टूडेंट्स हैं, मान लो अगर वो जो उनका अपना घर है जहाँ से वो पढ़ने के लिए कॉलेज में आते हैं, वो उनका रेजरवायर है, वहाँ पे वो रहते हैं परमानेंटली। ठीक है, वहाँ पे उनको फूड मिलता है, वो अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, वो उनका रेजरवायर है। वैसे ही जो रेजरवायर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए परमानेंट रेसिडेंस है। लेकिन जो सोर्स है, मान लो कुछ स्टूडेंट्स कई बार पीजी में रहते हैं, तो पीजी में क्या है, रहने के लिए थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, वो परमानेंट रेसिडेंस नहीं होता। ओके, थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, फूड मिलता है, ठीक है, तो उतना डेवलप नहीं करते जितना हम अपने परमानेंट घर में कर सकते हैं। वैसे ही सोर्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए टेम्परेरी रेसिडेंस होता है, वहाँ पे वो अपने आप को प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाता। ओके, so this is the difference between a reservoir and a source. Okay. Next is the endemic. Endemic क्या होता है? The constant presence of a disease. चल हमें एरिया में हमेशा ही प्रेजेंस, कांस्टेंट प्रेजेंस। जैसे मान लो हमारे यहाँ में पंजाब में जो डिजीज़ हैं, हमारे जियोग्राफिकल एरिया में जो डिजीज़ चलती हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसा भी एनवायरनमेंट उसको फेवरेबल मिलता है, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है, जिसको यहाँ पे कंडीशंस फेवरेबल मिलती है। कुछ एक डिजीज़ ऐसी हैं जो हमारे पंजाब में नहीं मिलती, किसी और स्टेट में मिलती हैं, किसी और स्टेट में ऐसी डिजीज़ है जो वहाँ पे नहीं मिलती, किसी और में मिलती हैं। सो जैसे ही उस एरिया का एनवायरनमेंट ससेप्टेबल होता है, फेवरेबल होता है, सो वैसे ही वहाँ की एंडेमिक डिजीज़ होती हैं। ओके, मलेरिया है, डेंगू है, सभी तरफ रहते ही रहते हैं, हमेशा इसके केसेस होते रहते हैं। टीबी है, सो एक कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहते हैं, केसेस कभी बढ़ जाते हैं, कभी डिक्रीज हो जाते हैं, सो उसको बोलते हैं एंडेमिक। नेक्स्ट इज एपिडेमिक। सो इसकी रिसेंट एग्जांपल है कोरोना वायरस इन्फेक्शन, पहले ही एपिडेमिक हुआ। ठीक है, disease that occurs in a population in excess of its normally expected frequency to occur। पहले तो पता ही नहीं था कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन नाम की कोई डिजीज भी होती है, लेकिन हुआ तो एकदम से अगर केसेस बढ़ गए। सो एपिडेमिक क्या है? इट इज़ अ सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज इन एन एरिया। चाइना में जब ये स्टार्ट हुआ तब ये एपिडेमिक ही था। ओके, केसेस जो है एकदम से जब बढ़े तो उस टाइम पे वो एपिडेमिक था, लेकिन आज ये आके बन गया है पैंडेमिक, एंड दैट इज द नेक्स्ट डेफिनेशन, पैंडेमिक। ओके, सो सेवरल कंट्रीज, अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट को आगे चलकर जो अफेक्ट करता है उसको बोलते हैं पैंडेमिक। ओके, सो अब कोरोना वायरस इन्फेक्शन जो है वो पैंडेमिक बन चुका है। ठीक है ना, एक स्टेट को नहीं, एक सिटी को नहीं, एक स्टेट को नहीं, एक कंट्री को नहीं, ये बहुत सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स को अफेक्ट कर चुका है। ठीक है, सो आज तक सबसे जो डेंजरस डिजीज में से एक है, सो आज हम इसको पैंडेमिक बोलते हैं। ठीक है, जो आप देख सकते हो न्यूज़ में या कहीं और पे डिस्प्ले होता है, कोरोना वायरस या कोविड-19 इज अ पैंडेमिक, दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग the disease that is affecting several countries or continents. Okay. Next is the sporadic. Disease means a disease which is scattered about, that is cases occur irregularly, episodically from time to time and generally infrequent. कुछ एक ऐसी डिजीजेस जिनके केसेस के बारे में हमें पता नहीं लगता, कई बार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल ही नहीं होते। ठीक है, दैट मीन्स दे अकर इन एन एरिया बट टाइम टू टाइम वो चेंज होते रहते हैं। ओके, लास्ट इज द एक्सोटिक। एक्सोटिक क्या है? द इम्पोर्टेड डिजीज विच अदरवाइज डू नॉट अकर। कुछ एक ऐसे डिजीज जो वैसे तो नहीं होती लेकिन कहीं से और से आई हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारी डिजीज हैं जैसे वो जानवरों से आती हैं। ठीक है, सो आगे ह्यूमंस में वो इफेक्ट करती हैं और फिर कॉन्टिन्यूसली ह्यूमंस में चलती रहती हैं। ठीक है, सो दैट इज एक्सोटिक। ओके, सो दीज वर सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द टर्म्स रिलेटिंग विद द एपिडेमियोलॉजी। So next topic is, so that was our first topic. Next is
तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में के बारे में आपको बता रहा था। अ, इसको हम ऐसा कर सकते हैं, जो एक मेजर टॉपिक है उसके अंडर इसको ले लेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड को। डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन जो एक टॉपिक है, उसके अंडर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और उसके से जुड़ी हुई सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। सो द मेन टॉपिक इज द डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। ठीक है, इट विल इंक्लूड थ्री थिंग्स: द reservoir, the mode of transmission, and the susceptible host. And it will also explain about some types of environments. So epidemiological environment will be included under this topic. Okay. So starting from the dynamics of disease transmission, it includes first is source and reservoir. So as I have already explained about source and the reservoir, ठीक है, so definition आपको बता दी है। So next इसमें हम types पे आते हैं। टाइप्स ऑफ रेजर्वायर में क्या आता है? ह्यूमन रेजर्वायर, एनिमल रेजर्वायर एंड रेजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, सो फर्स्ट इज द ह्यूमन रेजर्वायर। ह्यूमन रेजर्वायर क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें जो रेजर्वायर है वो ह्यूमंस की है। ठीक है, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमन इज मैन इटसेल्फ। सो मैन के लिए जो मेन सोर्स और जो रेजर्वायर एक्ट करता है वो मैन खुद है। ओके, सो जो ह्यूमंस हैं वो केसेस हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं। ये आगे डेफिनेशन है ह्यूमन रेजर्वायर में, क्लासिफिकेशन है। केस क्या होता है कि कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है, इन द पॉपुलेशन, जिसको कोई भी एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज है, उसे हम बोलते हैं केस। ओके, तो केस के आगे थ्री क्लासिफिकेशन है: क्लिनिकल, सब क्लिनिकल एंड लेटेंट। सो इसमें आ जाता है क्लिनिकल इलनेस। सो क्लिनिकल इलनेस क्या है? इसमें माइल्ड और मॉडरेट वो टाइप होती है। क्लिनिकल इलनेस वो टाइप होती है जिसमें माइल्ड और मॉडरेट लेवल की इलनेस आ जाती है, टिपिकल और एटिपिकल आ जाती है, सिवियर और फैटल आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें साइन एंड सिम्टम जो है वो क्लियर होते हैं। सो दैट इज क्लिनिकल इलनेस। ये केस के आगे क्लासिफिकेशन आ जाती है। सेकंड इज द सब क्लिनिकल केसेस। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, या किसको कहते हैं? रेफर टू एज एन इनअपरेंट कवर्ड मिस और अबॉर्टिव केसेस, जिनके बारे में हमें पता नहीं लगता। केसेस होते हैं लेकिन वो उतने साइन एंड सिम्टम्स शो नहीं करते जितने करने चाहिए, तो उनको बोलते हैं सब क्लिनिकल केसेस। ओके, सो कौन कौन से डिजीज हैं जिसमें हमें सब क्लिनिकल केसेस मिलते हैं? इसमें आ जाता है मम्प्स, रूबेला, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, बी एंड डिप्थीरिया। ओके, नेक्स्ट इज द लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन क्या है? सो इसमें क्या है, होस्ट जो होता है वो शेड ऑफ नहीं करता इन्फेक्शियस एजेंट को। ठीक है, एंड डॉर्मेंट कंडीशन में जो है होस्ट के अंदर जो वो रहता है विदाउट शोइंग एनी टाइप ऑफ सिम्टम्स, सो उनको बोलते हैं लेटेंट इलनेस और लेटेंट इन्फेक्शन। सो दैट वाज अबाउट द केसेस एंड द क्लासिफिकेशन। थ्री टाइप्स ऑफ there are further three types in cases: latent infection, or the latent illness, clinical and subclinical. Next is कैरियर्स। व्हाट आर द कैरियर्स? कैरियर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, जो अपने आप में डिजीज एजेंट को रखते हैं। ठीक है, लेकिन उनको खुद को डिजीज नहीं होती है, बहुत माइल्ड साइन एंड सिम्टम शो करते हैं, लेकिन उनमें जो डिजीज एजेंट है वो बॉडी में रहता है, और जैसे ही उनको कंडीशंस फेवरेबल मिलती है वो आगे डिजीज एजेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम द टू द नेक्स्ट पर्सन। ओके, सो उनको बोलते हैं कैरियर्स। टाइप्स होती हैं आगे अलग अलग। बाय द टाइप देर आर थ्री टाइप्स। इट इंक्लूड्स इंक्यूबेटरी कैरियर। इंक्यूबेटरी कैरियर में क्या होते हैं? जो इंक्यूबेशन पीरियड के ड्यूरिंग जो है वो डिजीज़ को कॉज करते हैं। इसमें डिजीज़ के एग्जांपल्स आ जाते हैं मीजल्स, मम्प्स, पोलियो एंड इन्फ्लुएंजा। सेकेंड टाइप आती है कन्वल्सेंट। सो इसमें वो आते हैं शेड द डिजीज एजेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कन्वल्सेंस। रिकवरिंग एज जो पीरियड होता है उसमें जो है इलनेस के टाइम पे, ठीक है, सो डिजीज एजेंट को जो आगे स्प्रेड आउट करते हैं तो उनको बोलते हैं कन्वल्सेंट कैरियर्स। इसमें टाइफाइड फीवर और डायसेंट्रिक डिजीज की एग्जाम्पल होती है। नेक्स्ट इज द हेल्दी कैरियर्स, इमर्जेस फ्रॉम सब क्लिनिकल केसेस। ठीक है, सो इसमें वो पर्सन आ जाते हैं जिनको आगे वो ट्रांसफ़र करते हैं जो
डेवलप करते हैं कैरियर स्टेज विदाउट सफरिंग फ्रॉम आवर डिजीज, जिनको खुद डिजीज नहीं होती लेकिन आगे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि पॉलियोमाइलिटिस, कॉलरा, मेनिंजियोकोकल मेनिंजाइटिस एंड साल्मोनेलोसिस। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द कैरियर्स। So that was the type classification according to the type. It includes incubatory, convalescent and healthy carriers. Second is the by the duration. Temporary carriers होते हैं, कुछ एक temporary carriers होते हैं who shed infectious agent for short periods of time, थोड़े टाइम पीरियड के लिए जो एक्ट करते हैं कैरियर्स, ठीक है। एंड सम आर द क्रॉनिक फॉर इंडेफिनेट पीरियड, ठीक है, जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको इंडेफिनेट पीरियड के लिए आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें टाइफाइड फीवर, हेपेटाइटिस बी एंड डिसेंट्री की डिजीज के रिलेटेड आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, पोर्टल ऑफ एग्जिट। तो पोर्टल ऑफ एग्जिट में क्या है, इसमें जितने भी हमारे बॉडी में एग्जिट्स होते हैं उसके थ्रू जब भी हम डिजीज़ को आगे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो सारे के सारे आ जाते हैं कैरियर्स आगे पोर्टल ऑफ एग्जिट के थ्रू। जैसे कि यूरिनरी कैरियर्स आ सके आगे, सो जो यूरिन के थ्रू आगे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल कैरियर्स आगे स्टूल के थ्रू, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू, नेजल कैरियर्स आगे, ठीक है, म्यूकस के थ्रू, स्किन इरप्शंस के थ्रू, ब्लड स्वेट इनके थ्रू, ठीक है। सो दैट वाज द टाइप अकॉर्डिंग टू द portal of exit under the carriers, okay। so रेजरवायर हम कर रहे थे, तो रेजरवायर में उसकी डेफिनेशन हो गई, नेक्स्ट केस और कैरियर हो गई, लास्ट में आ गया एनिमल रेजरवायर क्या होता है। सो कुछ एक ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें एनिमल भी रेजरवायर के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसे कि रेबीज की मैंने एग्जांपल दी थी, उसमें डॉग जो है रेजरवायर के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, जो सलाइवा होता है डॉग का, ठीक है। सो इसमें जो आगे एक्ट करते हैं एनिमल्स, सो उनको हम बोलते हैं एनिमल रेजरवायर। सो जो डिजीज़ जो है एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, ट्रांसफर होती है, तो इनको बोलते हैं जूनोटिक डिजीज और जूनोसिस, ओके। सो दैट वाज अबाउट एनिमल रेजरवायर। एक होता है रेजरवायर इन नॉन लिविंग थिंग्स। कुछ क्या है जी, ऐसी जो हम कह सकते हैं कि जैसे कि सॉयल है, एग्जांपल्स होती हैं सॉइल्स और इनएनिमेट मैटर है जो कि आगे इन्फेक्शंस के लिए रेजरवायर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सॉयल एक बहुत बड़ा रेजरवायर होता है, इसमें अलग अलग टाइप के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं, जब भी पर्सनस और ह्यूमन्स इसके टच में आते हैं तो ये आगे डिजीज़ को कॉज कर सकता है। इसमें टेटनस आ सकता है, एंथ्रेक्स आ सकता है, और वर्म लार्वे होते हैं वो आगे डिजीज़ को कॉज कर सकते हैं। सो दैट इज रेजरवायर इन नॉन लिविंग थिंग्स, okay। So that was about the reservoir and source in the dynamics of disease transmission, okay। Next is the modes of transmission। So modes of transmission है, so फिर ये हम टॉपिक जो है ये डे आफ्टर टुमारो इसको हम करेंगे, तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा फर्दर। मैं आपको पहले बता दूँ डायनेमिक्स ऑफ डिजीज़ ट्रांसमिशन का एक बड़ा टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। तो इसमें हमने अब तक रेजरवायर और सोर्स कर लिया है, इसके बाद इसमें आएगा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, देन आएगा ससेप्टिबल कोज, उसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड इसके अंडर ही आएगा, तो वो भी इसके अंडर ही मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पहले समझा दूँ तो और ज़्यादा एक्सप्लेन जो बढ़िया तरीके से हो जाएगी, ठीक है। सो परसों हम रखते हैं ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग 4 PM नियर अबाउट, ठीक है। सो आज थोड़ा सा ट्राई कर रहे थे नए तरीके से लाइव होने के लिए, सो नेटवर्क इशू के वजह से वो हो नहीं पाया। A day after tomorrow we will be on a new live session, okay। So उसका जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो है इसके साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। आज का हमारा था डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, मैंने लिखा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड था तो अब मैंने उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है, तो आपका डायनेमिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजी हमने सारी कर ली है। सो परसों जो है हम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड करेंगे, ओके। सो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम बाकी जो है वो परसों कंप्लीट करेंगे। एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम बाकी जो है वो परसों कंप्लीट
नो क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो, आप कॉलेज की जो ये ऑफिशियल पेज है उस पर जाके वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज़ के बारे में बता दो, तो नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा कोशिश करेंगे हर एक दिन छोड़ के हम सेशन जो लगाते रहें, तो आपको हेल्प भी हो जाएगी। BSc के एग्ज़ाम भी हैं, ठीक है। सो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो से। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू।